Dear students, previous video was interrupted. So now we study about question number 3. What are fundamental and derived unit? Name are the basic and supplementary physical quantity with its name, its unit and symbol. We know that in the Conference of Geneva, all physical quantities related with the nature and natural phenomena of universe is divided into 7 categories. We know that all physical quantities of this universe related with nature and its phenomena is divided into 7 categories, are in 7 categories in Conference of Geneva in 1960. So they decided total all physical quantities can be represented in the term of 7 fundamental physical quantities. It means 7 fundamental or basic quantities are found in this world which cannot be expressed in the terms of each other. 7 physical quantities are found in this world which cannot be expressed in the term of each other. It means they are independent of each other. These 7 physical quantities are called fundamental quantities, and these are called fundamental quantities, and units which is used to measure these physical quantities is known as fundamental quantities. We know that 7 fundamental physical quantities are found in this physical world which cannot be expressed in the term of each other. They are independent to each other. So these physical quantities can be measured in the term of only these physical quantities. So when units are unique, standard dimensions are defined, they are called fundamental units. These 7 physical quantities are called fundamental or basic physical quantities, and its units to measure these physical quantities is known as units, fundamental units. जेनेवा की जो कॉन्फ्रेंस हुई 1960 में, उसमें ये डिसाइड किया गया कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में कुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं किया करती, जिन्हें एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये टोटली इंडिपेंडेंट हैं और इन फिजिकल क्वांटिटीज को इन्हीं के फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करके मेजर किया जा सकता है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें से किसी एक को भी किसी दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से संपूर्ण फिजिकल वर्ल्ड को 7 फिजिकल क्वांटिटीज में डिवाइड किया गया और इन इंडिपेंडेंट, फंडामेंटल और बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स
डिसाइड की गई वो यूनिट्स कहलाई फंडामेंटल यूनिट्स आर बेसिक यूनिट. These are 7 physical quantities: length, unit, SI unit, meter, and its symbol M, mass, kilogram, kg, time, unit, second, small s, temperature. Fourth fundamental physical quantity is temperature. Its fundamental unit is Kelvin and it is represented by capital K. Electric current, its unit is ampere and represented by capital E. Luminous intensity, candela, it is represented by CD. Quantity of matter, its unit is mole and it is represented by symbol MOL. और इसके अतिरिक्त बाद में ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और जोड़ा गया जो कि जिन्हें इन 7 टर्म्स में भी डिफाइन नहीं किया सकता था. प्लेन एंगल, रेडियन जिसके लिए RAD, और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन ST. तो एक बार फिर से देखते हैं क्या डेफिनेशन लिखी थी मैंने. The physical units which can neither be derived from one another, the physical units which can neither be derived from one another nor they can be further resolved into more simpler units are called fundamental or basic units. ऐसी यूनिट्स जिन्हें क्या नहीं कह सकता, जिन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया सकता, ऐसी यूनिट्स जिन्हें एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता और उन्हें उससे अधिक सिंपलर फॉर्म में रिजॉल्व ब्रेक नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट कहलाती हैं. फिजिकल क्वांटिटीज के लिए सुनिश्चित की गई, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए सुनिश्चित की गई वे फिजिकल यूनिट्स जिन्हें एक दूसरे के टर्म में, ना तो एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता हो या कन्वर्ट किया जा सकता हो और ना ही उससे ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में रिसॉल्व किया सकता हो, विघटित किया जा सकता हो, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स कहलाती हैं. और whole physical world is divided into 7 physical quantities and 7 physical quantities have 7 fundamental units. These 7 physical quantities have 7 physical units. They are called fundamental units. Physical quantity, length, किसी भी whole world में लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंटरनेशनल ऐसा यूनिट डिसाइड की गई थी वो मीटर है. और ये जो मीटर है इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो लाइट के वैक्यूम में चलने के समय पे, टाइम इंटरवल पर डिसाइड की गई है. अर्थात लाइट कितने टाइम इंटरवल, लाइट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, बहुत स्मॉलर टाइम इंटरवल है, उसमें वैक्यूम में जो डिस्टेंस चलती है उसे मीटर के इक्वल माना गया है, 1 मीटर के इक्वल माना गया है. तो कैलकुलेशन माने ये बहुत स्मॉलर टाइम इंटरवल में लाइट को के वैक्यूम की स्पीड से मीटर को डिसाइड किया गया है. तो मीटर यूनिट है किसकी, लेंथ की. ऐसा यूनिट मास, किलोग्राम, इसके लिए एलॉय का यूज किया गया है, इरिडियम और एक और है, 2 चीज़ों का एलॉय का एक प्रोटोटाइप यूज किया गया जिसका डायमीटर, एक प्रोटोटाइप सिलेंडर यूज किया गया है जिसका डायमीटर हाइट इक्वल होते हैं. और ये पेरिस के पास एक स्थान है, वहाँ पर ये सब रखे हुए हैं, किलोग्राम केजी. इसी तरह से टाइम, सेकंड, इसके लिए
कार्बन के प्रोटोटाइप से पास होने का वो दिया गया है। तो सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, सेकंड की भी डेफिनेशन फिक्स्ड इस तरह से डिफाइन की गई है कि इसमें टाइम के साथ रिस्पेक्ट में भी कोई वेरिएशन ना आ सके, और इसे इंटरनेशनली किसी भी स्थान पर ले जाया जाए, किसी भी स्थान पर मेजर किया जाए तो यह एक्यूरेट उतनी ही प्राप्त हो। टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जो प्रकाश की तीव्रता होती है कि उसकी ज्योति की तीव्रता कितनी है उसके लिए कैंडला का यूज किया गया, और इसे CD से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से केमिस्ट्री में जो क्वांटिटी जब हम एटॉमिक उसमें लेते हैं तो एटॉमिक मास के रूप फॉर्म में, तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल में ली जाता है जिसे MOL कहते हैं, से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लेन एंगल जो सामान्य टू लाइंस के बीच में हम प्लेन पर एंगल खींचते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, चूंकि 7 क्वांटिटीज उसे रिप्रेजेंट करने में एबल नहीं थी, इसलिए उसके लिए एक रेडियन डिफाइन किया गया जिसका सिंबल है RAD। और इसके बाद भी जो कोन होते हैं अपन जिसमें आइसक्रीम खाते हैं उस कोन के वर्टेक्स पे बनने वाला सॉलिड एंगल, तो कोनिक सेक्शन का सॉलिड एंगल जो था 3D में उसको मेजर करने के लिए स्टेरेडियन ST का यूज किया गया। ये 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स थी और ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स इसका मतलब है कि इनको छोड़कर ये 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज इस तरह की हैं कि लेंथ को मास में नहीं, टाइम में या टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक करंट या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी या क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी के टर्म में नहीं नापा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि लेंथ 3 किलोग्राम है या लेंथ 4 केल्विन है या लेंथ 4 मोल है, 4 मोल है। तो चूंकि ये 7 क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी यूनिट्स या मेजरमेंट को एक दूसरे के टर्म में डिफाइन नहीं किया सकता, इसलिए इनकी सेपरेट यूनिट्स डिसाइड की गई, सेपरेट यूनिट्स डिफाइन की गई। these units is called fundamental or basic units and derived units. All other physical units except these 7 fundamental units are derived units. They are unlimited. We know that unlimited physical quantities, but all those physical quantities are expressed in the term of fundamental or basic units. The all other physical units which can be expressed in terms of basic units are called derived units. derived units का सेंस ही यही है कि जिन्हें डिराइव किया गया हो, किसकी हेल्प से, द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल और बेसिक 7 फंडामेंटल और बेसिक units is known as derived units. The units which can be derived by the help of fundamental or basic units is known as derived unit. या except fundamental units, all other physical units except 7 fundamental and 2 supplementary units are derived unit because they are derived by the help of fundamental or basic units. माने ऐसी सभी यूनिट्स जो 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री बेसिक यूनिट्स के अतिरिक्त हैं, वे सारी की सारी फिजिकल यूनिट्स are derived unit because they are derived by the help of fundamental units. Like area is the square of length, area equal to length into width, and both are measured in length.
So meter into meter we get square meter. So square meter is the physical unit of area which is derived by the help of fundamental unit of length. Volume length into width into height. वॉल्यूम तो वॉल्यूम का क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, वी गेट क्यूबिक मीटर. तो यूनिट ऑफ फिजिकल यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर एंड इट इज ए डिराइव्ड यूनिट बाय द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ. फोर्स वेट m into a, force m into a, acceleration mass, unit of mass क्या होता है किलोग्राम, इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है लेंथ अपॉन स्क्वायर अपॉन ऑफ टाइम, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, तो हो गया न्यूमरेटर में किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन स्क्वायर ऑफ सेकेंड, टाइम इज टेकन इन सेकेंड, सो यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो स्क्वायर सेकेंड. देन यूनिट ऑफ फोर्स किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. तो ये किसकी यूनिट हो गई, फोर्स की. अब फोर्स क्या है ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी फोर्स की यूनिट भी क्या है ड्राइव्ड यूनिट है. तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स है जो हम इन 7+2 के अतिरिक्त पढ़ते हैं, वे सारी की सारी यूनिट्स फिजिकल यूनिट्स आर ड्राइव्ड यूनिट्स. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स. अब एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स. तो फंडामेंटल की डेफिनेशन से हम उठाएं तो दे आर बेसिक, आर इंडिपेंडेंट, आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. दे आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. The units of fundamental quantities are called, the units of fundamental quantities are called fundamental units. और फर्स्ट दे सकते हैं हम the units are derived, the units are derived physical unit, physical quantity, derived physical quantities is known as derived units. Second, total number of units, total number of fundamental units are 7. It is found only 7 in our physical world. And derived units, it is unlimited. Derived units are unlimited. इसकी कोई सीमा नहीं, हम काउंटिंग नहीं कर सकते कितनी यूनिट्स फिजिकल यूनिट्स ड्राइव्ड हैं. तो लेकिन फंडामेंटल यूनिट फिक्स्ड है, ये 7 और 2 सप्लीमेंट्री होगी. और थर्ड, दे कैन बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली. फंडामेंटल यूनिट्स कैन बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली, मैंने इन्हें डिफाइन करने के लिए इंडिपेंडेंटली डिफाइन होंगी. जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज दे कैन बी डिफाइंड ओनली विद द हेल्प ऑफ बेसिक यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. ड्राइव यूनिट्स केवल और केवल फंडामेंटल यूनिट्स को इंडिपेंडेंटली डिफाइन करना पड़ेगा, और डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट की सहायता से डिफाइन करना होगा. तीसरा बने जो आप चौथा जो है, आप फंडामेंटल यूनिट्स को एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. फंडामेंटल यूनिट्स को एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन सभी ड्राइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स पर निर्भर हैं. सभी ड्राइव्ड फिजिकल यूनिट्स किस पर है, फंडामेंटल यूनिट्स पर ही निर्भर है. इस तरह से एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. इसके बाद हम देखते हैं एब्रिविएशन इन पावर्स ऑफ 10. बहुत ज़्यादा यूज होता है एब्रिविएशंस ऑफ पावर्स ऑफ 10. हम करते क्या है कि मिली, डेसी, डेका,
किलो, 1 किलो एम्पियर, 1 किलो एम्पियर, 1 किलोग्राम, 1 डेकाग्राम, 1 गीगाबाइट, 1 मेगाबाइट, या 1 नैनो, नैनो है, पिको है, या फेमटो है, एक्सो है। तो मैंने ये हम वर्ड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये जितने भी वर्ड हैं ये 10 की पावर्स को शो करते हैं और इनका पॉपुलर है। ये प्रीफिक्स किसी के साथ भी लग जाए, इन प्रीफिक्स को ये प्रीफिक्स लग जाए तो इनका मल्टीपल कितना कर दोगे ये, और सिंबल ये लग जाए तो भी मल्टीपल होंगे ये। और यदि इस तरह के प्रीफिक्स लगे, स्मॉलर है ये मल्टीपल, सब मल्टीपल है, ये मल्टीपल है। यदि इस तरह के प्रीफिक्स यूज होते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, तो हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, तो ये वर्ड हट जाएंगे। इनके प्लेस पर हम इनके प्लेस पर हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सब मल्टीपल है और ये मल्टीपल है तो इसके प्लेस पे ये कर सकते हैं। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। डेका के स्थान पर हमने क्या कर दिया, 1 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम दिया है तो 1 डेकाग्राम को हम क्या नोट कर सकते हैं, ग्राम में डेका का मतलब है 10, डेका का मतलब है 10, तो हो गया 10 ग्राम। और इसी तरह से 1 डेसीमीटर दिया है, 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसी मीन्स 10 रेज़ टू, प्रीफिक्स यूज हुआ है माने सामने यूज होगा, मीटर के सामने हमने लिखा 1 डेसीमीटर, इट मीन्स 10⁻⁻1 मीटर, इट मीन्स 1/10 पार्ट ऑफ मीटर, 1/10 पार्ट ऑफ मीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटी का हमने यूज किया, 1 सेंटी, सेंटी को हटाना हमें, मीटर में लिखना, तो 1 सेंटीमीटर, तो सेंटी के प्लेस पे क्या हम लिख सकते हैं, 10⁻⁻2, तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 cm इज इक्वल टू 10⁻⁻2 m। 1 सेंटीमीटर, और इसको जनरली क्या लिखा जाता है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब इसकी क्या है इनके यूजेस, और यदि अपन इसको याद कर लें हम इसको, तो हमारे को क्या फायदा मिलेगा, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमसे बन जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि 1 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम, डीग्राम, अब हम इसको चाहते हैं किसमें कन्वर्ट करना, ग्राम में, तो 1 डीए, 1 डीए, ठीक है, और नहीं तो इसको ग्राम को जी में करते हैं। यदि डेकाग्राम लिखा तो 1 DAG, 1 डेकाग्राम, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, 10 ग्राम, कितना नोट कर सकते हैं, 10 ग्राम। अब इसी तरह से 10 का स्क्वायर दिया है तो हेक्टो, अब डेसी है तो डेसी, 1 डेसीमीटर, ये इनका 1 डेसीमीटर, या इसको हमने लिखा, इसका संकेत है 1 डीएम, 1 डीएम। अब 1 डीएम मतलब 1 डेसीमीटर, इट मीन्स डी का सेंस कितना है, 10⁻⁻1 मीटर, या 1/10 मीटर, 10th पार्ट ऑफ मीटर इज नोन एज 1 डेसीमीटर। अब ये तो आपका बहुत यूज वाला वर्ड है, 1 सेंटीमीटर, 1 cm आप यूज करते हो, 1 cm, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इन द टर्म्स ऑफ सी, 1c का मतलब है 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 m, c is replaced by 10⁻⁻2, some multiple of c is 10⁻⁻2, so we can write it 1 cm equal to 1 centimeter is equal to 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻³ मिली। अब इसको यदि 1 mm लिख दें,
1 mm 1 मिलीमीटर, तो हम इसको क्या नोट कर सकते हैं 10⁻³ मीटर। 1 mm इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ऐसे नहीं क्या अकेले इसी में होता है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ 1 m का सब मल्टीपल है 10⁻³। अब यहां पर किलो, 1 किलो वाट, तो ये 1 किलो वाट लिखा है, तो 1 किलो वाट। अब इसको हम वाट में चेंज करना चाहें तो क्या रख सकते हैं 10⁻³ वाट, 1 किलो वाट 10⁻³ वाट। जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनके साथ डेका का यदि यूज है तो डेका जिसका सिंबल डीए है, यदि उसका यूज है तो उसको डेका को हम मल्टीपल 10⁻1 से हटा सकते हैं। यदि हेक्टो का है या एच सिंबल है, हेक्टो या एच सिंबल है, इसको हम 10⁻2 से हटा सकते हैं। यदि किलो का के का सिंबल बना हुआ है या किलो लिखा हुआ है तो किलो को किलो के साथ मीटर हो सकता है, किलो के साथ वाट हो सकता है, किलो, ठीक है, किलो केल्विन हो सकता है। तो जो भी है, किलो को यदि हटा के फंडामेंटल उसकी सेकेंड यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, किलो को 10⁻³ से रिप्लेस कर देंगे। मेगा, मेगावाट, मेगाबाइट्स। अब मेगाबाइट दिया है तो मेगाबाइट MB, कितने मेगाबाइट, बोले 100 मेगाबाइट, तो 100 मेगाबाइट MB दिया है। अब हम M को हटाना चाहते हैं, 100 इंटू 10⁻6, 10⁸8 बाइट हो गए, 10⁸8 बाइट पर सेकेंड हो गए। गीगा, गीगा को 10⁻9 से, टेरा को, अब देखो यहां पर मेगा से किलो तक तो स्मॉल के का यूज हुआ, लेकिन 10⁻6 मेगा कहलाता है, इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मेगाबाइट। 10⁻9 गीगाबाइट माने गीगा कैपिटल G से, मेगा M से, गीगा कैपिटल G से, और इसकी मल्टीपल कितना है, गीगा को रिप्लेस करने के लिए 10⁻9, मेगा को रिप्लेस करने के लिए 10⁻6, गीगा को रिप्लेस करने के लिए 10⁻9, टेरा को रिप्लेस करने के लिए 10⁻12, और पेटा को रिप्लेस करने के लिए 10⁻15, और एक्सा को रिप्लेस करने के लिए 10⁻18 मल्टीपल का यूज होते हैं। इसी तरह से सब मल्टीपल यदि देसी है अर्थात या डी का सिंबल यूज हुआ है तो 10⁻1 से रिप्लेस हो जाएगा। सेंटी है या सी का यूज हुआ तो ये 10⁻2 से रिप्लेस हो जाएगा। मिली है या एम लिखा हुआ है तो किसी भी के साथ भी एम का प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है सिंबल्स के फॉर्म में, तो एम को हम किससे रिप्लेस कर देंगे 10⁻, जैसे मैंने बताया 10⁻³ से। माइक्रो जुड़ा हुआ है तो 1 माइक्रोसेकेंड, 1 माइक्रोसेकेंड ये म्यू से रिप्रेजेंट होता है। 1 माइक्रोसेकेंड हम सेकंड में लिखना चाहते हैं, इसका मतलब है 10⁻⁻ सेकेंड। 1 माइक्रोसेकेंड इज इक्वल टू 10⁻6 सेकेंड। नैनो 10⁻9, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 नैनो सेकेंड है, 1 नैनो सेकेंड 1 ns लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 10⁻9 सेकेंड। इसी तरह से पिको सेकेंड है 10⁻12, तो ये 10⁻12 या पिको किससे रिप्लेस हो जाएगा सब मल्टीपल 10⁻12 से, तो यदि PS लिखा है तो 10⁻12 सेकेंड हो गया। फेमेटो 10 फर्मी, इसका बहुत यूज होता है फर्मेटो का, फीमेटो का कि फर्मी के रूप में, क्योंकि जो न्यूक्लियर डिस्टेंसेस हैं वो फर्मी में ही मेजर की जाती हैं, तो फीमेटो या फर्मी 1 फर्मी का यूज होता है। एटो 10⁻18 है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पूरे सिंबल्स विथ नेम एंड इट्स सिंबल आप लोग को याद होना चाहिए। हायर फिजिक्स जितना भी पढ़ते जाओगे बहुत यूज होते हैं और अपने को समझ में आता है कि मैक्रो लिखा तो क्या मतलब, नीनो लिखा तो क्या मतलब, पिको लिखा तो क्या मतलब, टेरा का क्या है, पेटा क्या है।
तो हमें मालूम है किस मल्टीपल की बात की जा रही है। ये तो हुई एब्रिविएशंस ऑन पावर्स ऑफ 10। अब प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर स्मॉल एंड लार्ज डिस्टेंसेस, जितनी भी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा हम यूनिवर्स में बहुत सारी स्मॉल और कैपिटल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कुछ स्पेशल यूनिट्स का भी यूज करते हैं, जो इस प्रकार से हैं। जैसे फर्मी, इट इज यूज टू मेजर न्यूक्लियर साइजेस। 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 फेमेटोमीटर इज इक्वल टू 1 एफएम इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। एंगस्ट्रॉम, ये फर्मी, जब भी आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे आपको फर्मी मिलेगा, तो फर्मी का मतलब समझ जाओगे 10⁻⁻ मीटर 15 मीटर। 1 एफएम, एफ दिखा, एफ को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻⁻15 से। ये देखो एफ का सब मल्टीपल। एंगस्ट्रॉम, ये हमने यहां नहीं नोट किया है। टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ लगभग इसी रेंज में होती है, इसी ऑर्डर की होती है, तो इसलिए वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम मींस 1 एंगस्ट्रॉम, इसके ऊपर डिग्री का साइन होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर, और उसको और साइड कर दिया तो 10⁻8 सेंटीमीटर। नैनोमीटर, इट इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर का यूज होता है लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने में। 1 नैनोमीटर 1 nm इक्वल टू 10⁻9 मीटर और 10⁻7। और 1 माइक्रोन या माइक्रो, माइक्रोन या माइक्रो हमेशा किसके लिए होता है, 10⁻6, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर 1 म्यू है, म्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो 10⁻6 मीटर, तो 1 म्यू इज रिप्लेस्ड बाय 10⁻6 मीटर। अब लॉन्ग लार्ज डिस्टेंसेस, लाइट ईयर, लाइट ईयर लोगों को नहीं पता है कि डिस्टेंस की यूनिट है, एक लार्जर यूनिट है डिस्टेंस की, कि किसी भी प्रकाश को एक वर्ष में चलने में जितनी दूरी तय करनी होती है, वो उस दूरी को हम कहते हैं लाइट ईयर, और इसको LY से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका संकेत है LY, लाइट ईयर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year, and 1 light year is equal to 1 LY is equal to 9.467 into 10⁻15 मीटर, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9.46 पेटामीटर, 9.467 पेटामीटर। PMD लिख सकते हैं, 9.46 PM मीन्स पेटामीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर से भी बड़ी होती है। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। इट इज डिफाइंड, सॉरी, लाइट ईयर से छोटी होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है AU, ये अर्थ से सन की मीन एवरेज डिस्टेंस को माना जाता है। जो अर्थ से सन की एवरेज डिस्टेंस है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। इट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर द डिस्टेंसेस। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और सबसे बड़ी होती है डिस्टेंस की, लार्जेस्ट यूनिट है पारसेक। पैरालैटिक सेकंड, it is the largest practical unit of distance. 1 parsec is equal to 3.08 into 10⁻16 meter is equal to 3.26 लाइट ईयर। ये लाइट ईयर का 3.26 टाइम्स होती है। कौन, पारसेक, तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है पारसेक। अब टाइम, मास की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं और कुछ एरिया या इनसे डिफरेंट यूनिट्स हैं, उसको हम आगे देखेंगे। ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक्स।